ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी फिर आता रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, जिसको जब आना होगा आता रहेगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमने कल पढ़ा, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़े, और ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारे different types of terrestrial ecosystems, and the different zone, this type of different ecosystem will present in the different zones of biosphere. Now we talk about the aquatic ecosystem, because there are the three types of ecosystems. First is the aquatic, terrestrial, and third one is a man-made ecosystem, which is actually made by the human being or artificially made, जिसको हम artificially बनाते हैं. और फॉरेस्ट में हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम फॉरेस्ट के. Now we talk about the aquatic ecosystem. As the name indicates, aquatic का मतलब aquatic is the related with the water ecosystem. ठीक है, तो वाटर से रहेगा. मैं एक मिनट अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की. फोर्थ सेमेस्टर. ठीक है, तो एक्वेटिक से जैसे समझ में आ रहा है, एक्वेटिक मीन्स द वाटर इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच इज present in the water. So what is an aquatic ecosystem? Aquatic ecology study of the water based ecosystem. जब हम water से related, water से related ecosystem के बारे में study करते हैं, then it is known as a water ecosystem. And we studying about the interaction between the water animals and the interaction of water animals with the environments, and then in environment से और उनसे आपस में खुद में जो interaction होगा, that is actually the water ecosystem. There are an area of water in which significant biological activity can occur, because in aquatic ecosystem there is a lot of biological activity which will take place. बहुत सारे biological activities होती है, क्योंकि there are so many aquatic plants, there are so many aquatic animals, there are so many aquatic organisms which are present in the water. So of course there is interaction between all these organisms and water and the water and organisms. So क्या interaction होता है, how they interact, क्योंकि the temperature, light, this in the aquatic ecosystem, the light will play a very important role. On the basis of the light, there's a different zones which are divided in the aquatic ecosystem, क्योंकि light का बहुत important role है aquatic ecosystem में. This definition excludes the most the groundwater system, because we can study the groundwater. Exclude the most groundwater. तो हम groundwater के बारे में इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. We are talking about the rivers and the ponds, not about the groundwater. जो हमारे अंदर जो groundwater है उसको हम generally नहीं पढ़ते हैं, because we are studying the rivers and the ponds. So aquatic ecosystem can involve the flowing or still water and can be fresh or saline. तो जिसमें हम flowing water भी पढ़ेंगे, stagnant water भी पढ़ेंगे. Stagnant means the water which is stagnant, जो ठहरा हुआ पानी रहता है, उसके बारे में भी, और जो flowing water होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे.
फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो इट्स इंक्लूड द पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, river and the wetlands. Wetlands are the area of the land that are periodically under water or whose soil contain a great deal of moisture, normally on the edges of pond, lake or river. तो वेटलैंड वो कहलाता है जो पानी का जो साइड वाला जो मतलब एकदम लगा हुआ होता है ना, जो लैंड है जो पानी के साइड में एकदम जो लगी हुई, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंटेन द सॉइल एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. सो सॉइल के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी है, तो ऑफकोर्स द इकोसिस्टम इज लिटिल बिट डिफरेंट. थोड़ा सा इकोसिस्टम वहां पर अलग होगा. तो नॉर्मली द एजेस ऑफ पॉन्ड, लेक और रिवर जो एजेस होती हैं वो वेटलैंड्स में आती हैं. फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम इज दैट द फैक्टर्स such as temperature, sunlight, oxygen and nutrient determine which organisms live in which area of the water. तो टेम्परेचर का रोल, सनलाइट का रोल, लाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट रीचेस, लाइट रीच करती है डिफरेंट डिफरेंट जोन में. अगर हम एक्वेटिक की बात करें, रिवर की बात करें या पॉन्ड की बात करें, तो लाइट जो रहती है वो कितनी देर, कितने नीचे तक जाती है या कितना वो डीप तक जाती है, उस बेसिस पे देयर आर डिफरेंट जोन्स व्हिच आर डिवाइडेड एक्चुअली दिस ग्रुप्स ऑफ एक्वेटिक, क्योंकि उसी बेस पर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं. लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ प्लांट, है ना. लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सर्वाइवल के लिए. इवन द सनलाइट, द ऑक्सीजन and the temperature and the nutrient also. So these are the very important factors for survival of any organism or any plant. So on the basis, क्योंकि अगर हम एक्वेटिक की बात करें, रिवर की या पॉन्ड की बात करें, तो डिफरेंट जोन में जो रहेगा वो डिफरेंट टेम्परेचर अलग होगा. सनलाइट कितनी रीच हो रही है, क्योंकि टॉप में ज्यादा रीच होगी, मीडियम में उससे कम होगी, नीचे तक लाइट जा ही नहीं पाएगी. ऑक्सीजन का लेवल ऑफ कोर्स नीचे एकदम ऑक्सीजन का लेवल तो होगा नहीं, एंड द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाती है, एक्सेस भी हो जाता है, दोनों हो जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर द थ्री ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. तीन ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, प्लैंकटन, नेक्टॉन्स एंड द बेंथोस. तीन उसमें डिवाइड किया गया है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को. प्लैंकटन मतलब कि मोस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्लोट, drift flee in the water and can be the microscopic animal zooplanktons or the microscopic plant phytoplanktons. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो कि फ्लोट हो रहे हैं वाटर सरफेस पर, जो फ्लोट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना. क्योंकि हमने देखा होगा बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स होंगे उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं. फाइटो मींस दोस प्लांट्स व्हिच आर लिविंग इन द water, that's why it's known as a phyto. So and the zooplanktons with the very small organisms or very small organisms which are living in the water, which are floating in the water. So phytoplankton and zooplanktons, these are the microscopic animals or plants which are float on the water surfaces and it is known as a plankton. ठीक है. नेक्स्ट है नेक्टॉन. नेक्टॉन्स आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट स्विम एक्टिवली इन द ओपन वाटर इंडिपेंडेंस ऑफ द करंट. मतलब एक्चुअली क्या होता है, करंट होता है वाटर में और करंट के तरफ से हम जनरली वाटर विल फ्लो, द ऑर्गेनिज्म विल फ्लोट ऑन द वाटर, बट दे कैन फ्लोट, मतलब करंट के विपरीत भी बहना बहुत एक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा डिफिकल्ट है. सो नेक्टॉन्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट स्विम एक्टिवली, जो बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं इवन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ करंट्स करंट के बेस पे भी नहीं, क्योंकि करंट क्या करता है, वाटर जब मूव करता है तो वो अपने तरफ सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके मूव करता है. बट दिस ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिपेंड्स ऑन द करंट ऑफ द वाटर. मतलब जिस तरह से वाटर मूव कर रहा है तभी वो मूव करे, ऐसा नहीं है. दे कैन मूव देमसेल्फ ओनली एंड दे कैन मूव वेरी एक्टिवली. सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज नेक्टॉन्स. एंड बेंथॉन्स आर द बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, जो नीचे रहते हैं एकदम बॉटम में. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, एकदम नीचे प्रेजेंस होते हैं. बहुत सारी अलगीज जो होती है, हमेशा आपने कभी वो डिस्कवरी चैनल का भी देखा होगा, तो बहुत सारी अलगी जो होती है वो अगर आप देखते होंगे समुद्र के नीचे बहुत सारी अलगी ऐसे बहुत नीचे साइड भी रहती है, तो बेंथोस भी होते हैं. और जनरली उनका कलर अगर आपने देखा होगा तो ऑब्जर्व किया होगा तो दे आर नॉट अ ग्रीन इन कलर, मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट अ ग्रीन इन कलर, दे आर अ रेड और रेडिश कलर या इस टाइप